Hello students, welcome again. This video's topic will be fertilization and menstruation. Two important topic, that is fertilization and menstruation. Okay, so let's start. As we know, during intercourse and copulation, sexual intercourse, copulation, the sperm are now here. As I told you, fertilization is the process by which the fusion of male gamete and female gamete, the fusion of male and female gamete is known as fertilization. So that means fertilization होने के लिए male and female gamete का मिलना जरूरी है. We know by penis the sperm is now here. ठीक है, during sexual intercourse you can say copulation या mating, तो sperm यहाँ है. Now it goes through inside the cervix. After that, अब sperm one time you can say testis produces millions of sperm. एक testis जो है millions of sperm produce करता है, and but ovary produces only one egg in a month. और भी produce करती है, it remain inactive. वो degenerate हो जाते हैं और you can say वो rest remains inactive रहते हैं. And in the alternate ovary it produces one egg. और भी produce करता है, rest are inactive. First only one will remain active. One will remain active either on this or either on this. Let's suppose one month में इधर produce हुआ, अगले month में इधर produce होगा वो egg by the ovary. Now what happens when sperm enters through the vagina? After vagina it enters through the cervix. Uterus में पहुंचा तो some of the sperm go this way because we don't know, sperm don't know कि भैया वो कहाँ produce हुआ है वो egg, either on left side or either on the right side. Some of the sperm goes left side and some of the sperm goes outside. कुछ तो sperm यहीं पर damage हो गए due to the acidic nature of vagina. कुछ तो यहीं पर क्या हो गया, dead हो गए. कुछ sperm आगे जाके इधर left side, they move on to left side and some other moves on to the right side. Okay, अब egg is here. Egg जो होते हैं वो immotile होते हैं. Through by the action of fimbriae and some cilia are there in the walls of uterus, that means fallopian tube. So by the action of fimbriae and this cilia और fimbriae के action से जो egg यहाँ produce हुआ था वो अब कहाँ पहुंच चुका है, fallopian tube पर. Okay, this is the fertilization side, as I told earlier as well. तो जो sperm इस वे में गया उसको तो खाली हाथ लौटना पड़ा. Why? भैया यहाँ तो egg ही नहीं है. Now egg जिस दिशा में था कुछ sperm इधर को गए on the right side. तो आफ्टर दैट जैसे ही पहला स्पर्म मीट कर जाएगा उसके एक्रोसोम की जो वॉल होती है, द स्पर्म की जो वॉल होती है वो इस वॉल को तोड़ेगा. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, अपना जो जेनेटिक मटेरियल, अपना जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर रिलीज कर देगा. ओके, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे स्पर्म गया उसने इसकी वॉल तोड़ी, जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ फीमेल एग, दिस इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ मेल गैमेट, this is genetic material of female gamete, this is the material of male gametes. तो जैसे इसने इसकी वॉल तोड़ी, अपना न्यूक्लियस इसने रिलीज कर दिया. नाउ इट इज हैविंग n+n. Okay, now it is known as zygote. As I told in the first video as well कि fusion of male and female gamete gives zygote. So for the production of zygote, the fusion fertilization is very important. Now this zygote, यहाँ पर अब ये क्या बन चुका है, जाइगोट बन चुका है बाय द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया है. एंड फॉर दैट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर ये सर्टेन माइटोटिक डिवीजन करेगा. इट अंडरगो सर्टेन माइटोटिक डिवीजन. पहले 16 सेल स्टेज आएगी, देन 32 सेल स्टेज आएगी. दिस इज नोन एज एम्ब्रियो. ओके, ये आफ्टर माइटोटिक डिवीजन इट विल कॉल एम्ब्रियो. When it goes blastulation, a process there you will get to know in higher classes, then it will move from here to here. वो यहां से मूव करता है इस यूटेरस में, because ultimately he or she has to grow here. उसने ultimately यहां पर ग्रो करना है. After that, जब जो वॉल I said earlier, जो वॉल प्रोजेस्टेरोन ने बनाई है,
the wall which is made by the release of progesterone, the wall, this wall, which जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारा स्पंजी मटेरियल है. The movement of embryo from fallopian tube to the uterus, इस एम्ब्रियो का आफ्टर हैविंग सर्टेन डिवीजन, कुछ डिवीजन होने के बाद जो यहां पर आता है और यहां पे आके अटैच हो जाता है. दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट इज 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि what is implantation? The movement of, you can say, the attachment of developing embryo from fallopian tube to the walls of uterus. It is known as implantation. Okay. जैसे ही यहाँ पर आ गया तो what happens? जैसे ही यहाँ पे अटैच हो गया तो इसकी वॉल जो है, जितनी ब्लड वेसल्स लाई है, वो इससे अटैच हो जाती है as in the form placenta. This is also important. Placenta. प्लेसेंटा वो वॉल है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक फीटस को मां के साथ, दैट मीन्स एक फीमेल के साथ जोड़े रखता है. अब व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? द इंपॉर्टेंट टर्म अराइजेस. फर्टिलाइजेशन वी हैव डन विद फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हो गया है. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. यहां पे इसका मिलना ही फर्टिलाइजेशन है. नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस? आई एम टेलिंग. फीटस, that means that this zygote will undergo certain division वो grow up होगा, divide होगा, बड़ा होगा. 16 cell stage will be there, the 32 stage will be there. Okay, after 32 stage will be there, what happens? It will undergo certain division as well. वो धीरे धीरे बड़ा होगा, division होगा, cells बड़ी होंगे. कुछ समय बाद क्या होगा? Organ develop होंगे. जैसे उसमें ऑर्गन डेवलप होते हैं, द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल बी नोन एज फीटस. डेवलपिंग फीटस इज डेवलपिंग बेबी. ओके, डेवलपिंग बेबी इज नोन एज फीटस. ओके, तो फीटस, जैसे ही फीटस इसमें आ गया, दैट फर्टिलाइजेशन हो गया, द फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट. उसे क्या कहते हैं? प्रेग्नेंट कहते हैं. इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो देयर. इम्प्लांटेशन इज द मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम fallopian tube to the walls of the attachment of developing embryo to the walls of the uterus. Now after that, the attachment with the help of placenta it is done. What is placenta? Placenta is the tube which जो provide करता है developing baby को nourishment, oxygen, nutrients, food you can say. Which provides what? Placenta provides what? Placenta provides certain things to the developing embryo, you can say fetus. First nutrient food you can say, क्योंकि भैया वो भी तो क्या है, एक जान बन गई है, उसको भी फूड ही चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन. इट ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन. he or she also needs oxygen. तो कहां से मिले? फ्रॉम वेयर इट गेट? तो उसको मिलने के लिए जो बनाई चीज है प्लेसेंटा, वो माँ जो भी फूड और ऑक्सीजन लेती है वो प्लेसेंटा के थ्रू उस फीटस को भी मिलता है. आफ्टर दैट, अब उसने फूड भी ले लिया, ऑक्सीजन भी ले लिया, तो वो वेस्ट मटेरियल भी बनाएगा. ऑक्सीजन ले रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेगा. तो फॉर वेस्ट मटेरियल, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल वो भी इस प्लेसेंटा के थ्रू ही रिमूव होता है. तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, that means 2 things placenta provides. That means nutrients, oxygen, whatever it is, nourishment and removal of waste material is done through this placenta. इस placenta के through ही ये क्या होती है, done होती है with the help of placenta. Now after this, ये जो fetus बड़ा होगा, during it is inside the uterus of a female. इट इज नोन एज, जब तक वो फीमेल के यूटेरस के अंदर है, दिस इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड. जेस्टेशन, इट इज नोन जेस्टेशन मीन जब तक वो मां के गर्भ से बाहर नहीं आता, दैट इज नोन एज गेस्टेशन. दैट मीन जब तक वो डेवलप हो रहा है मां के पेट के अंदर, दैट इज नोन एज गेस्टेशन. गेस्टेशन इज इन ह्यूमंस, इट इज अराउंड अबाउट 9 to 10 months.
इन बिटवीन 9 और 10 मंथ के बीच में बेबी जो है गिव बर्थ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वजाइना के थ्रू ही वो गिव बर्थ टू न्यू बेबी करता है. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल, दैट इज मेंस्ट्रुएशन. Moving further, that is another topic, that is menstruation. Now, what is menstruation? Menstruation is the process by which the ruptured walls of the uterus and the dead egg comes out through the vagina in the form of bleeding, in the form of blood. Blood के रूप में बाहर आना, this will be known as menstruation. Okay. Now, what happens? कि after fertilization, let's suppose fertilization ओवरी ने सेल प्रोड्यूस किया एंड इस ओवरी ने सेल, लेट्स सपोज इस ओवरी ने अप्रैल इज गोइंग ऑन, तो अप्रैल के मंथ में सेल प्रोड्यूस किया. ओके. व्हाट हैपेंस कि इस सेल को कोई स्पर्म नहीं मिला फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो अब ये डेड हो गया. इट वेट्स फॉर ओनली 1 डे. Wait for only 1 day. 1 day के लिए during ovulation, ovary produce 1 egg for mating. That means for reproduction, for fertilization, it make only 1 cell. Okay. अब let's suppose क्या हुआ, अप्रैल के मंथ में fertilization नहीं हुआ, तो what happens कि जो वॉल प्रोजेस्टेरोन ने बनाई है, अब प्रोजेस्टेरोन ने कहा for what purpose it made this wall, इसने ये वॉल बनाई है फॉर द इम्प्लांटेशन. इसके लिए बनाई है सिर्फ और सिर्फ उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद होगा. जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद होगा उसके लिए उसने ये वॉल बनाई. तो ब्लड वेसल जो लाया है वो सब किसके लिए लाया, फॉर स्पंजीनेस. वो किस लिए बनाया है कि वो जो एम्ब्रियो यहाँ आएगा उसके इम्प्लांटेशन के लिए वो उसने वो वॉल बनाई है. ओके. एंड इन नेक्स्ट मंथ, हर मंथ आई सेड कि हर मंथ उसने 1 सेल प्रोड्यूस करना है. अगले मंथ वो फिर 1 सेल प्रोड्यूस करेगा, फिर वो वॉल प्रोजेस्टेरोन के द्वारा वो वॉल्स फिर बनेंगी. तो हर मंथ उसने बनाना है. तो दैट मीन्स इस मंथ में इस वॉल की अब कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. इस मंथ में इस वॉल की कोई जरूरत नहीं, एज वेल एज दिस एग की भी कोई जरूरत नहीं है. नाउ नो नीड ऑफ दिस एग इज नाउ एंड दिस वॉल एज वेल. ना वॉल की जरूरत है, ना ही दिस एग की जरूरत है. ओके. क्योंकि नेक्स्ट में उसने फिर बनाया, फिर उसने वही वही एग बनाएगा एज वेल एज दिस वॉल ऑल्सो. दोनों चीजें दोबारा बनानी है नेक्स्ट में. तो व्हाट हैपेंस कि लेट्स सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो व्हाट हैपेंस कि ये जो सेल हो गया, इट वेट्स फॉर 1 डे. 1 डे के बाद वो क्या बनता है, इट सेल बिकम्स डेड. वो क्या होता है, डेड होता है. एंड दिस वॉल ऑल्सो रप्चर्स. ये वॉल भी क्या होती है, रप्चर हो जाती है. अब सो इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स से बनी है बहुत सारी. तो ब्लड विल रिलीज. तो व्हाट हैपेंस, ब्लड रिलीज होता है और दिस ब्लड कम्स आउट विद दिस डेड सेल एज वेल. डेड सेल एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना. इट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. और ये सबके साथ होता है, हर महिला के साथ होता है. इट स्टार्ट्स with the puberty के साथ स्टार्ट होता है and ends on at the age of 40 to 45 years. The starting time, that means at which the age at which it starts, this is known as menarche. At the age of 10 to 12 years means the starting age at which stage it starts, that is known as, the term is given, that is menarche. 10 to 12 years में ये गर्ल्स में और विमेन में ये स्टार्ट हो जाता है. एट द एज एट विच इट स्टॉप्स, जिस एज में ये बंद होता है, एंडिंग यू कैन से एंडिंग टाइम, दैट मीन्स अब उनकी बॉडी ओव्यूलेशन नहीं कर रही है. द स्टेज इट इज नोन एज मेनोपॉज. अब ओव्यूलेशन नहीं कर रही है, एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एग प्रोड्यूस नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये वॉल्स नहीं बन रही हैं. तो दैट मीन्स द एज इज 45 to 50 years. इस एज में ओव्यूलेशन बंद हो जाता है. तो ओव्यूलेशन बंद हो जाता है तो वॉल्स नहीं बनती हैं, तो ब्लड भी रिलीज नहीं होता है.
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कि गर्ल्स में और मेंस दैट मीन्स वुमेन्स में ये होता है, और इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं, सबके साथ होता है. ओके, सो स्टार्टिंग टाइम मेनार्क, ending time menopause. Very important, that is menstruation, and it occurs in every month. हर मंथ में अकर होता है, तो that's why it is known as menstrual cycle. Menstrual cycle, और ये in common word it is known as periods, because it is occurring again and again. हर मंथ में होना, हर मंथ में एग प्रोड्यूस होगा, वॉल्स बनेंगी. लेट्स से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एक केस तो ये है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, एक केस है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. अब हर मंथ में तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. एंड मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है. अब व्हाई दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग. लेट्स सपोज कि फर्टिलाइजेशन हो गया, द बेबी इज नाउ इनसाइड द यूटेरस. अब बेबी जो है यूटेरस के अंदर है, तो व्हाट हैपेंस कि जो वॉल्स है, जो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है, जो जिस वॉल ने प्लेसेंटा बनाया है, अब जितना भी ब्लड है, जितना भी वेसल्स है, अब वो किसके नरिशमेंट के काम आ रहा है. तो उस दौरान मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इट रीस्टार्ट्स अगेन एज अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ बेबी. वो दोबारा शुरू होता है जैसे ही एक वुमन एक बेबी को बर्थ दे देती है, उसके बाद वो अगेन स्टार्ट होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू लर्न. अब व्हाई इट इज हैपनिंग कि ये वॉल जो प्लेसेंटा बनाया, जितनी भी वॉल्स ने प्लेसेंटा बनाया है, अब वो सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. ये सब वॉल्स एक दूसरे कनेक्टेड है, तो जितनी भी ब्लड वेसल्स है, अब वो किसके नरिशमेंट में काम आ रहा है, द फीटस विच इज ग्रोइंग इनसाइड द यूटेरस. तो उस दौरान मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है. मेंस्ट्रुएशन होता है व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस. And this is very important. It is known as menstrual cycle because every month it is happening. Period it is known as starting time menarche and ending time it is menopause. That means starting time is at which age, and at which it stops it is menopause. Okay.